Hello dear aspirants. So in this concept decoding series, we are trying to have beautiful aspects of the mathematics optional, not only in the feeling for the beautiness, it is the feeling for the what is the importance of those concepts regarding our CSE or forest services optionals. So today the topic is gonna be very much interested for you and at the highest level of importance for you, because you people may have the disturbance while doing the integral calculus, right? If you observe in integral calculus, you have surface areas and volumes wala problem, right? Is that or not? After this, if you talk about vector calculus, again the whole story about integrals, be it line, surface or volume, everywhere we need to understand ki what is ellipsoid, what is paraboloid, what is hyperboloid. So thing is, if you talk about 3D geometry itself, that is the core syllabus part, right or not? Paper 1. Yes. So when I say demystifying central conicoids, I mean ax square plus by square plus cz square equals to 1. This equation, what does this mean actually? And when I say we are trying to demystify it, the reason is we feel the fever in these concepts while the geometry is attached with the central conicoids. So when you talk about central conicoids, many of you may not be heard about this, but maximum will be okay with that. Chalo. So next 10 to 15 minutes, just be calm and composed and just believe on the person who is in front of you कि he will decode something for you which is gonna make your life easier in these previous 3 to 4 topics. Perfectly I am saying. But for that, please give me time. I am a teacher which is who is slow but very much engaged in the conceptual clarity while addressing the demand of UPSC. Chalo. So dear fellows, when we talk about central conicoids, so mathematically we are talking about an equation of the form ax square plus by square plus cz square equals to 1. So यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है. अब अगर आप ध्यान दें, 2D पिक्चर्स जो हमारे सामने थी, these are just reflection in the 3D pictures. ठीक है? For example, if you recall, there you had ellipse, right or not? So this you call ellipse in 2D. Whereas when you talk about 3D, so here you have an equation of the form x square upon a square plus by square upon b square plus z square upon c square equals to 1. So once it is moving from 2 variable to 3 variable, we call this as ellipsoid. Are you getting my point? So conicoids means it includes all these ellipsoids, paraboloids and all. I'm sorry. Let's I'm sorry. Let's move on the other picture. When you talk about x square upon a square, I'm sorry, here it is b square. I'm sorry, very sorry. Here you talk hyperbola, right or not? So when you talk about hyperbola in 2D, so what is the picture we get in 3D? So the picture we get
अच्छा, मेनी ऑफ यू मे बी इंटरेस्टेड कि सर ये पिक्चर दिखेगा कैसा. So we will have very beautiful pictures like this today. Okay, believe me, you will enjoy those. ठीक है. So but for that you have to wait a bit. Okay, चलिए, बहुत बढ़िया पिक्चर्स अपने को दिखाई देंगे. ठीक, टेंशन नहीं लेना है. Fair, but for that we need to have bit patience. चले, so let's come back on the mathematics. X square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square equals to 1. Here we have two combinations, my dear fellows. If only one term is with the negative sign, if two terms are with the negative sign. Okay, so here it was hyperbola. Here we have two surfaces, that is hyperboloid hyperboloid of one seat, and this is basically, this is hyperboloid of one seat, this is hyperboloid of two seats. This wala picture is showing hyperboloid of two seats. Fair? Chale. So in case of 2D we had parabola as well, right or not? Y square equals to 4ax type. So what we call that as parabola. So what in case 3D? In case of 3D, we have two surfaces here like x square upon a square plus y square upon b square equals 2z type. Okay, this you can say mu z type. कोई भी constant यहाँ पे x square upon a square minus y square upon b square equals 2z type. So this is called paraboloid, but due to this expression it is called elliptic paraboloid. Okay, so due to this expression this surface is called hyperbolic paraboloid. ठीक है. So now you people may be thinking that कि सर ये मैथमेटिक्स तो हमारी बुक में भी लिखा था, हमारा दुख तो कुछ अलग था, आप समझ ही नहीं रहे हैं. फिर मैं बोलूँगा आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात. मैं कह रहा हूँ मैं सिस्टमेटिक लर्निंग पे हमेशा फोकस करता हूँ. एक एक चीज़ बीच बीच से उठा लेने से कुछ भी नहीं होता है, वो तुम 10 साल से उठाते रहे हो. राइट और नॉट? सो स्टे ट्यून्ड, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स. बिलीव मी, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स. फेयर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, क्या किया हमने? गेटिंग द मैथमेटिकल फीलिंग्स फॉर सेंट्रल कॉनिकॉइड्स. सो सेंट्रल कॉनिकॉइड्स मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस इन जनरल फॉर्म. सो इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल कॉनिकॉइड्स. ओके, central conicoid is not some surface, basically it is a category of surfaces under which we get ellipsoid, we get hyperboloid, we get paraboloid. क्लियर है अभी? चले, अब जो अगली प्रॉब्लम आती है, I want to touch that nerve. While calculating surface areas and volume, you people suffer in गेटिंग द लिमिट्स. बोलो हाँ या ना. देखो कितनों के चेहरे पर चमक आई. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए फॉर द गिवन सरफेस यू पीपल ऑलवेज स्ट्रगल. अब वो क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि भाई आपको उसका मैथमेटिक्स और उसका ज्योमेट्री कनेक्टेड मैनर में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है. इज इट और नॉट? So today we are gonna
एड्रेस दैट नाउ। एक एक करके करेंगे हम आज के क्लास में, इन सारे सरफेसेस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली एज वेल एज ज्योमेट्रिकली, एंड आई विल बी टेलिंग यू द प्रोसेस हाउ टू थिंक। सो टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू डू नथिंग फॉर दिस पार्ट, जस्ट अटेंड दिस। चलिए एक एक करके हम डिमिस्टिफाई करते हैं। नंबर फर्स्ट, लेट्स से इफ यू आर सेइंग कि सर टेल मी अबाउट एलिप्सॉइड, क्योंकि मैंने वहां पर मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस पढ़ा है, वर्टेक्स पढ़ा है एलिप्स का, एलिप्स के लिए सेमी एक्सेस पढ़ा है हमने, राइट, वर्टिसेस पढ़ा है। तो आप यहां पे भी कुछ होता है क्या, जरा बताइए सर, मैं इसको देखना चाहता हूं ये दिखता कैसा होगा। ठीक है, तो उस दिखाने के लिए मेरे पास बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, लेकिन एक जो गलती हम लोग करते हैं, यस इट इज मिस्टेक, हमें लगता है गूगल पर 3D फिगर्स को विजुअलाइज कर देने अच्छे भर से, इधर पीपीटी अच्छा लगा देने भर से आपके एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो दोस्त रेड सिंबल मार्क कर लेना वहां पे आज, बिल्कुल आई एम सॉरी, आप बिल्कुल ही गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि गूगल पर तो वो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे ही उसका अदर फॉर्म किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में उसने कहा इन द फर्स्ट ऑक्टेंट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट अबव द एक्स बाई प्लेन ओनली, समझ रहे हैं, वहीं आपको फिर एक्चुअल में पता चलता है कि उधर अच्छा देखभर लेने से आंसर्स क्यों नहीं हो पाते हैं। मेरी बात समझ गए आप? तो यहां पे कॉन्सेप्ट डिकोडिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई कुछ चीज अच्छे से आती है मैं आपको ग्लोरीफाई करके बता के चला जाऊं, नॉट एट ऑल। वी आर एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। चलिए, तो एलिप्सॉइड की जब बात होगी तो सबसे पहला काम है कि हमें उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पता है, राइट। अब हम इस सरफेस को ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली डिकोड करने के लिए देखिए ध्यान से, ये आदत डाल लेना आज के बाद आप लोग, ज्योमेट्रिकली डिकोडिंग। देखिए ध्यान से, कभी भी जैसे हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस में एक टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, उसकी कॉन्सेप्ट डिकोडिंग भी बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली डिकोडिंग में सबसे पहला काम हम चेक करते हैं कि वेदर द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल, किसके अबाउट, कोऑर्डिनेट एक्सेस, राइट। Is the given figure or surface is symmetrical about axis? This is the first step while doing any curve tracing. क्लियर है अभी? चलिए, फॉर एग्जाम्पल देखेगा यहां पर, लेट्स गिव दिस एज नंबर 1, सिंस 1 remains unchanged, since 1 remains unchanged while replacing x by z by minus x by z, x minus by z, x by minus z, minus x minus by minus z, because all are of the even power x by z। तो x को अब आप कहेंगे कि सर बच्चा लोग की तरह बताइए ना, सपोज दैट ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। अगर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस। व्हाई? बिकॉज वट एवर हैपनिंग विद पॉजिटिव x दैट इज सेम हैपनिंग विद द नेगेटिव x। ये मतलब होता है सिमेट्रिसिटी का। फिर सुन लीजिए, ठीक है। सो हियर द इलिप्सॉइड इज सिमेट्रिकल अबाउट all the coordinate axes। देखिए ध्यान से, so 1 is symmetrical about, अच्छा देखो पहले वाले को डिकोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब 2-2 मिनट में हो जाते हैं। फिर
क्योंकि प्रोसेस इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पहले में प्रोसेस सीख जाएंगे, बाकी तो फिर डिमिस्टिफाई करने में 2-2 मिनट लगेगा, ठीक है। सो डोंट लूज योर पेशेंस प्लीज। अबाउट ऑल कोऑर्डिनेट एक्सेस। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखिएगा, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सरफेस अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, मतलब कुछ ऐसा पेरिफेरल है जिसके अंदर में ये सरफेस है। सो व्हाट डू यू वांट टू चेक? यू वांट टू चेक बाउंडेडनेस। देखिए क्लियरली, फॉर 1 इफ यू पुट y एंड z एज 0 तो x मैक्सिमम कितना जा सकता है? x स्क्वायर इज a स्क्वायर, सो x may be lying between -a and +a। तो ये किसके लिए था? y0 z0, z0 x0, so y will be lying between +b and -b, similarly z will be lying between -c and +c। so हम क्या बोलेंगे? 1 is bounded between +-a, 0, 0, 0, +-b, 0, 0, 0, +-c। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको यह समझ आ गया कि जो इलिप्सॉइड आप मुझे दे रहे हैं दैट इज बाउंडेड बिटवीन द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, यू कैन से, विद द साइड्स ABC, राइट? चलो, so while doing the curve tracing, the another important part is, देखिए ध्यान से, another important नहीं, the very important part you can say, the very important part you can say, where the plane cuts the given surface। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल प्लेन्स। देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिंसिपल प्लेन्स x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या होता है? yz प्लेन, y इक्वल्स टू 0 मीन्स zx प्लेन, दिस मीन्स xy प्लेन। ओके, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वेयर दिस बाइजेड प्लेन में या व्हाट टाइप ऑफ फिगर, व्हाट टाइप ऑफ कोनिक, व्हाट टाइप ऑफ कर्व विल बी लुकिंग लाइक व्हेन आई एम ऑन द बाइजेड प्लेन, व्हेन आई एम ऑन द xz प्लेन, व्हेन आई एम ऑन द xy प्लेन। चलो, सो लेट्स डू दैट। व्हेन x इज 0, 1 इज क्या हो जाएगा? z इज 0, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज व्हाट? ellipse। व्हेन y इज 0, दिस इंप्लाइज 1 इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज अगेन ellipse। ये वाला ellipse किस में है? xy प्लेन में। दिस वाला ellipse इज इन द zx प्लेन। सिमिलरली फॉर x इक्वल्स टू 0, 1 is y square upon b square plus z square upon c square equals to 1, so that is the ellipse in the yz plane। say yes or no। तो इससे हमें क्या पता चला प्यारे बच्चों कि ऑलमोस्ट फिगर को अब हमने डिमिस्टिफाई कर लिया है। ध्यान से देखिएगा, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन, सभी लोग। इफ आई से, ध्यान से देखिए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। सपोज दैट इफ यू टॉक अबाउट दिस xy प्लेन, सो xy प्लेन में ellipsoid is an ellipse। Suppose that you are talking in yz plane, so yz plane में again it is an ellipse। Getting my point? अब ellipse तो मिल गया, उसकी बाउंड्रीज भी मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल
एक्स वाई प्लेन में अगर मुझे इलिप्स चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट इफ आई एम ड्रॉइंग ठीक है, थोड़ा आर्ट अच्छा नहीं है, सो प्लीज कोऑपरेट, है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज इलिप्सॉइड जो होता है ना, वो जो बचपन में लट्टू घुमाते थे, सारे को धागा धागा से बांध दीजिए, कुल मिला के इलिप्सिस है आपके पास, एक्स वाई प्लेन में इलिप्स है, वाई जेड प्लेन में इलिप्स है, जेड एक्स प्लेन में इलिप्स है। सो अब ये जो सरफेस बनता है दैट इज कॉल्ड इलिप्सॉइड। अब कल को आप उससे ये पूछ सकते हैं कि सर इसकी वर्टिसेस क्या होंगी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट माय डियर फेलोज, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव जेड एक्सिस, राइट। सो नाउ यू आर आस्किंग टू मी कि सर ये वाले वर्टेक्स क्या मिलेंगे, ये तो बताइए आप जरा मुझे। मेरी बात समझ पाए? तो जब भी आप कर्व ट्रेसिंग करने जाते हैं, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्टिसेस। सो वर्टिसेस जब भी आप कहते हैं तो ऑन द एक्सिस ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन पे आपको उसकी वर्टिसेस मिलेंगी। अ लाइन जॉइनिंग अपोजिट वर्टिसेस, क्या लाइन जॉइनिंग, इसको बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको, लाइन जॉइनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस। सो इफ यू टॉक अबाउट ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस y is 0, z is 0, y is 0, so z is 0, so x will be lying between minus a and plus a. So this wala point will be looking like minus a comma 0 comma 0, this is a comma 0 comma 0. Similarly this will be 0 minus b 0, this will be 0 v 0, this will be 0 0 minus c, this will be 0 0 c. So vertices and axis, एक्सिस का डेफिनेशन होता है द लाइन जॉइनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस। तो एक्सिस इसकी क्या मिल जाएंगी, सो एक्सिस ऑफ इलिप्सॉइड 1 क्या मिल जाएगा, एक तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, बिटवीन प्लस माइनस ए कोमा 0 कोमा 0, 0 कोमा प्लस माइनस 0 कोमा 0, 0 0 प्लस माइनस सी। This is just optional for you, otherwise you can say x axis, y axis, z axis is working for this particular ellipsoid as axis of this ellipsoid. So 3 axis this ellipsoid has. In addition, if you talk about जैसे ellipse में आप major axis और minor axis करते थे, वैसे ही यहाँ पर you can talk about major, mean and minor axis. So when you talk about this means ABC में 2A जो बड़ा वाला होगा, 2A, 2B, 2C. So out of these three numbers, the biggest number is major axis, mean वाला mean axis and lowest वाला minor axis of the ellipsoid. अब आप कहेंगे कि सर आपने ये आसानी से ड्रॉ कर दिए, आपको कैसे इमेजिन हो गया ऐसे करके? तो ऐसा होता नहीं है, मेरे को सपना नहीं आता है, मतलब मैं वो वाला नहीं हूँ कि हाँ मैं ही हीरो हूँ करके, ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। बस कुछ लोग ये हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स पर एफर्ट्स डालते हैं, चीज़ों को बार बार करते हैं और एंड ऑफ द डे दे कम आउट एज प्रॉपर फीलिंग्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं समझ में आएगा, एक एक करके चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्व ट्रेसिंग पढ़ा, फिर उस कर्व ट्रेसिंग के आइडियाज़ को एनालिटिकल ज्योमेट्री पर लाए, एनालिटिकल ज्योमेट्रीज के कुछ आइडियाज़ को कर्व ट्रेसिंग से मिलाया, एंड आई हैड दिस जॉय ऑन माई फेस कि यस, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स को आई कैन डीमिस्टिफाई। इज दैट क्लियर सबको? तो इलिप्सॉइड में आज के बाद गलती तो नहीं होगी।
प्लीज से यस और नो, इलिप्सॉइड इज फेयर और नॉट। अब क्या हाइपरबोलॉइड कर दें? चलो हाइपरबोलॉइड दिखाते हैं। Let's say the second figure I want to do, the demystifying is hyperboloid. Okay. So obviously, I'm sorry, hyperboloids are of two types. Number one is hyperboloid of one seat and hyperboloid of two seats. पैराबोलॉइड भी बहुत प्यारा है, वेक्टर कैलकुलस में बार बार उस पर घुमा फिरा के क्वेश्चंस ले लेता है, उसको भी करेंगे, थोड़ा धैर्य से बने रहिए बस, ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले कर लेते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का डिमिस्टिफिकेशन, ठीक है। सो मैथमेटिकली हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फेयर डियर फेलोज, कोई दिक्कत? अब जैसे जैसे हमने डीमिस्टिफाइंग करना सिखाया है, कीजिए जरा यहां पर, सभी लोग करेंगे। नंबर फर्स्ट, व्हाट वी डू, सिमेट्रिसिटी। तो अब देखिए पूरा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल अबाउट ऑल कोऑर्डिनेट एक्सेस, check it out, x minus x, y minus y, z minus z, equation remains unchanged. So symmetrical about all the coordinate axes. बाउंडेडनेस की चेक करें, देखिए ध्यान से, बाउंडेडनेस, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इफ यू टॉक अबाउट z इक्वल्स टू 0। यही तो बात है, मीन्स x एंड y का वैल्यू आप लेते रहिए तो वो तो क्या दिख रहा है, इलिप्स, ठीक। थोड़ा सा धैर्य रखना। अब फॉर एग्जाम्पल if x is 0, y is 0, then 1 gives, क्या देगा बोलो? अरे बोल दो भाई, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नो रियल वैल्यू ऑफ x, सॉरी जेड, नो रियल वैल्यू ऑफ z। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, जहां जहां होगा वो वाला पॉइंट इस हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट पर लाई नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? उस पर लाई नहीं करेगा। एकदम बच्चा लोग की तरह सोचिए। चलो अब आप देखिए फर्दर ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना ज्योमेट्री में, आधी कहानी ऐसे ही डिमिस्टिफाई कर देता है। सिंस माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ध्यान से देखते रहे ना, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, इफ दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, क्या बोला? तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू निगेटिव इफ दिस होल फैक्टर गिविंग द वैल्यू ग्रेटर देन 1। चेक इट आउट। इन दिस केस जेड विल बी रियल वैल्यू। बोलो हाँ या ना? ध्यान से देखते रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैन टेक एनी लार्ज वैल्यू, सो z इज अनबाउंडेड हियर। बोलो हाँ या ना? एकदम बिल्कुल विश्वास के साथ कहिए।
कोई तनाव किसी को? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू 5000 ले लेंगे, 50,000 ले लेंगे, 1 लाख ले लीजिए, वैसे ही जेड का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। बट यहां पर आप देखिए, दिस इज फिक्स्ड, नॉट एक्स एंड वाई। आई एम सेइंग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज 1। अब एक्स बाई आप बढ़ाते जाएंगे तो वो इलिप्स ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन अगर आप एक्स और बाई को देखें, सो दोज आर डिफाइंड बाई दिस रिलेशन। केवल इतने भर से, ध्यान से देखना, केवल इतने भर से केवल हम पॉइंट्स या उनका बाउंडेडनेस तो चेक कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे कि फिगर दिखेगा कैसा। चलो ठीक है, z इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स बाई प्लेन में तो इलिप्स दिख रहा है, लेकिन बाकी का क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी का दिखाते हैं। बी ऑन द बोर्ड प्लीज। इसी ऑब्जर्वेशन में ही, सो फॉर z इक्वल्स टू 0 दिस इज ellipse, right, in the xy plane. For y equals to 0 it is the hyperbola. क्या है ये? हाइपरबोला। किस में है? zx प्लेन में, राइट और नॉट? दिस इज इन xy प्लेन। फॉर x इक्वल्स टू 0 दिस इज बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगेन दिस इज हाइपरबोला, किसमें है? बाई जेड प्लेन में। से यस और नो? कोई दिक्कत है तो चिल्लाइए। अब इतनी जानकारी के साथ में मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जानकारी आपको बार बार करनी होगी, नहीं, मैं आपको इतने टाइप के क्वेश्चंस बनाना सिखा रहा हूं यहां पर, इंटीग्रल कैलकुलस हो, वेक्टर कैलकुलस हो, 3D ज्योमेट्री हो, क्योंकि उन सब में दुख दर्द ये नहीं होता कि टीचर ने आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना नहीं बताया। आप में से किसी का ये दुख नहीं रहेगा, सबको फॉर्मूला पता होता है। दुख ये होता है जब वो सरफेस की लिमिट निकालने जाता है तो धराशायी हो जाता है। तो अगर आपके अंदर ये हैबिट है, ये थिंकिंग अप्रोच एक बार डेवलप हो गई कि उपेंद्र सर ने कैसे बताया था, सोचना, बस फिर आपकी लाइफ आसान। अब क्या है? झूठ मूठ का तमाशा है, खींच दो इसको। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन, देखे ध्यान से। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सो दिस इज द नेगेटिव एक्स, दिस इज द नेगेटिव वाई, दिस इज द नेगेटिव जेड। ZX प्लेन में, ZX प्लेन में क्या है? हाइपरबोला। सो वो हाइपरबोला, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बाई जेड प्लेन में। अब ये 3D में दिखाई देगा, तो मैं पूरा तो उसको इधर नहीं दिखा सकता, उसके अपोजिट वाला फेस भी दिखाई देगा ZX प्लेन में, ओके। सो पीछे की ओर दिखाई देगा। सिमिलरली बाई जेड प्लेन में हाइपरबोला। एक्स बाई प्लेन में जेड का वैल्यू आपने 0 लिया, आपको इलिप्स मिल गया। जेड का वैल्यू 5 ले लीजिए तो भी तो इलिप्स ही मिलेगा। अरे बोलो भाई, जेड का वैल्यू 5 ले लिया तो क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 5 बाई सी स्क्वायर। इलिप्स ही तो रहा, बढ़ता चला जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी कि ये बना, ये एलिप्स बना, ये एलिप्स बना, ये एलिप्स बना, ये एलिप्स बना। शेप दिख रही है सभी लोगों को? हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट की, भगवान राम जी का वो जिसमें धनुष वो तीर डालते हैं, बोलिए। सो दिस इज द हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट। आज 5-7 मिनट डाल लिए इसमें, आज के बाद लाइफ आसान
कभी कोई दुख नहीं लेना है, रत्ती भर को दुख नहीं लेना है। क्लियर? कैसे सोचना है ये समझ में आ गया सबको? नहीं, अगर थोड़ा सा भी डाउट बचा है वापस से देखिए, ठीक है? YouTube का तो यही फायदा है। चलिए, तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट आपके जिम में छोड़े क्या? करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, बट करके दिखाइए। चलिए, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट्स, इसको डीमिस्टिफाई कीजिए और इसका फिगर बताइए कैसा दिखेगा। हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट्स, सभी लोग डू लेट मी नो। सो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? कोई भी दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक प्लस का रखिए। अच्छा, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट में एक चीज और आपको बता दें, जिसके साथ में नेगेटिव अटैच होगा उसी को एक्सिस ऑफ दैट हाइपरबोलॉइड बोला जाएगा। प्लीज नोट डाउन दैट इन द इक्वेशन। और वो मैथमेटिकली आपको इस तरीके से दिख गया। लेकिन अगर आपको इसमें नहीं है, केवल एक्सिस दिखाना होता कि सर एक्सिस केवल मुझे चमकाना है, ये सब नहीं करना है, तो एक्सिस उसके साथ पे होगा जिसके साथ में नेगेटिव अटैच है। 1 सीट की बात कर रहा हूं। 2 सीट को जब ऐसे ही आप डीमिस्टिफाई करेंगे तो उसका एक्सिस उसके साथ में आएगा जिसके साथ में प्लस अटैच है। बाकी डीमिस्टिफाइंग, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, सिमेट्रिकल, यस। बाउंडेडनेस के बारे में देखिए, अगर x 0 हो जाए, y 0 हो जाए, सो z इज प्लस माइनस सी। बोलो, होगा या नहीं? अब अगर z 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, प्लस कहां से आ गया ये है? सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ऑब्जर्वेशन है ना? तो पहली बार में जो लोग धराशायी हो गए थे कि यार इलिप्सॉइड का इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है क्या, तो यहां तक उनको आनंद आएगा ही नहीं कभी, और यहां तक पहुंच गए तो आनंद फिर सीमित नहीं रहेगा। राइट और नॉट? सो अगर मैं z इक्वल्स टू 0 ले लू, सो दिस इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई, बिकॉज स्क्वायर टर्म्स है, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। RHS नेगेटिव है, मीन्स नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई। बहुत बढ़िया। ध्यान से और देखना एक बात को, अगर आपसे हम कहें कि लेट्स से जस्ट 1 मिनट, माइनस एक्स स्क्वायर, देखना ऑब्जर्वेशन में ही चल रहे हैं, और आप कहेंगे सर इसका कोई रूल होता है क्या, तो पीटूंगा मैं ढंग से। फिर ये बच्चे वाली चीजें हैं, एक एक पॉइंट, वो बचपन की कॉपी भूल गए, वो ग्राफ वाली कॉपी, वो पेंसिल और पटरी, एक एक पॉइंट पे पॉइंट रखना, फिर उनको मिला के चित्र बना देना। तो वही तो यहां हो रहा है। बस आप बड़े हो गए हैं और आपको महसूस कराया जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा पढ़ाया जाना चाहिए आपको, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पर यार मैथ्स इज नॉट लाइक दैट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन राइट वे, इफ यू आर सिस्टमैटिक इन लर्निंग, देन इट इज ऑलवेज विद द जॉय। So here it is minus x square upon a square minus y square upon b square, that is 1 minus z square upon c square। ध्यान से देखते रहे ना आप प्यारे बच्चों। If this also comes out as less or equal to 0 or less than 0, then only x will have real values. Then only x and y will have real values. 1 minus z square by c square, I want less or equal to 0. This means I want this. This implies z is lying between c and minus c. Say yes or no. So means what does
interpretation says there is no part of the surface between z minus c and plus c, right or not? इतना तो क्लियर हो गया मेरे भाई कि ये z माइनस सी और प्लस सी के बीच में हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट जो दे रखा है यहां पे, उसका कोई भी भाग नहीं पड़ेगा। अब थोड़ी सी कहानी और बचती है कि सर जरा जो आपने प्लेन कटिंग दिखाया था कि एक्स वाई प्लेन में क्या दिखेगा, वाई जेड प्लेन में क्या दिखेगा, जेड एक्स में क्या दिखेगा, जेड इक्वल्स टू के के लिए क्या दिखेगा, तो जरा उसको भी चमकाया जाए एक ही बार में। देखिए ध्यान से, इफ आई टेक x इक्वल्स टू 0, सो व्हाट आई विल हैव, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज hyperbola. If I take y equals to 0, z square upon c square minus x square upon a square equals to 1, that is again hyperbola. Right or not? अरे say yes or no भाई. If you take z equals to 0, कहानी already discussed. Right? चलो ड्रॉ कर दिया जाए इसको। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज नेगेटिव जेड, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज नेगेटिव एक्स। पैराबोला बनाइए, ठीक है। तो ये 3D सरफेस है, 2D मत लीजिए, लेकिन इसमें दो सीट्स बनेंगी और इसके अंदर में ना ये इलिप्सिस बन रहे होंगे। चेक इट आउट। सो दैट इज व्हाई इट इज अ 3D surface. So this is hyperboloid of two seats whose equation is like this. Suppose that if you change this equation, x square upon a square plus y square upon b square, x square upon a square minus y square upon b square minus z square upon c square. If you change this surface, तो अब जब इसका ऐसे टाइप का इंटरप्रिटेशन करेंगे, you will be getting, let's say this is x, this is y, this is z. तो अब इसका जो x एक्सिस, क्योंकि प्लस किसके साथ में है, ऑब्जर्वेशन भी करके देख लीजिए। अब आपको जो हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट्स दिखाई देगा, वो उसकी एक्सिस जो होगी वो x एक्सिस होगी, और ये केवल हाइपरबोला नहीं है, इसके अंदर में ये आपको इलिप्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं। चेक इट आउट। और मैथमेटिकली भी आप उसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि जब जब मेरा z, देखिए ध्यान से, इफ z इज बियॉन्ड माइनस सी एंड प्लस सी, तो क्या मिल जाएगा, इलिप्स मिल जाएगा x एंड y में। चेक कर लो, पूरा मजा लीजिए एकदम भरपूर, बिना किसी तनाव के। कहिए डीमिस्टिफाई हुआ कि नहीं? हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट्स कितना तनाव देगा यार, कितना तनाव देगा भाई। बच्चा बनने में कोई दिक्कत थोड़ी है। पैराबोलॉइड पे जाएं। इजाजत दीजिए। चलो अब क्या है यार, उसके लिए अलग क्लास करोगे, आज ही कर देते हैं उसको भी। चलो इलिप्टिक पैराबोलॉइड दिखा देते हैं। इलिप्टिक पैराबोलॉइड। So when you talk about elliptic paraboloid, mathematically it is written like let's say this 4kz, 2kz, vz, कुछ भी लिख सकते हैं। कहानी कैसे? कहानी कैसे? कहानी ऐसे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। सिमेट्रिकल अबाउट x एंड y एक्सेस। बोलो, क्योंकि z को माइनस z से रिप्लेस करोगे इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो z एक्सेस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। बाकी कहानी क्या है देख लो। z का वैल्यू 0,
this implies x square upon a square plus y square upon b square equals to 0. If you take z का value 1, this comes out to be 2. If you take z का value 2, this comes out to be 4 and so on. Ellipses मिल रहे हैं. If you take z का value -1, this implies x square upon a square plus y square upon b square, no real value. इसका मतलब क्या हुआ? No part of surface will be in negative z axis. बोलो, मजा आया? झूठ मूठ का तमाशा यार. देखिए यहां से, इसका मतलब क्या हो गया? सरफेस passes from x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0. बहुत बढ़िया. So let's say this is x, this is y, this is z. Let's wait. वो चाय बागान देखा है? ओखली देखा है? ओखली सब लोगों ने ओखली देखा है ना? और ये बन रहे हैं इलिप्सिस. चेक इट आउट. इलिप्सिस दिख रहे हैं? सो दिस इज एलिप्टिक पैराबोलॉइड. कोई दिक्कत किसी को भी? किसी प्रकार का कोई तनाव होगा तो कहिए. तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आपको ये देखना है कि इंटीग्रल कैलकुलस में ये कैसे होगा, तो पहले तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी इस चीज़ को आज उन्होंने एंजॉय किया होगा, क्योंकि जितना मेरा फीडबैक है ओवर द बैचेस, तो वो इस वाले डीमिस्टिफाइंग वाले कॉन्सेप्ट में सारे बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं सर, पहली बार एक विजुअलाइजेशन टाइप का आ रहा है 3D सरफेसेस का. ठीक है? आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, just sharing my feelings and emotions with you. Fair? So this is the demystification for these surfaces. If you want more about something, do let us know. We will surely consider those. So today we had done demystification for किसके लिए किया है? Ellipsoid. Then we went for hyperboloid. Hyperboloid के अंदर में hyperboloid of 1 seat, hyperboloid of 2 seats. We went for paraboloid as well. So when we talk about paraboloid, this is elliptic paraboloid and hyperbolic. Hyperbolic मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप उसको कीजिएगा. नहीं होगा तो बताइए, मैं बताऊंगा. Only thing I would like to tell you here is, dear fellows, observation वाला part which I told you, don't compromise with that. Don't be over stressed कि यार सर ने इतनी सारी चीज़ें बच्चों वाली ऑब्जर्व करने को बता दी. मैंने आपसे फिर वही कहा, वो काम उतना ही था जितना पटरी और वो ग्राफ वाली कॉपी बचपन में लेकर करते थे, उससे ज़्यादा नहीं था. विश्वास मानिए, उससे ज़्यादा नहीं था. ठीक है? तो करना क्या है आपको? एकदम बच्चे की तरह इसका एक्सेस क्या होगा, वर्टिसेस क्या होगा, सिमेट्रिक कौन सी एक्सेस के अबाउट होगा, 2D फिगर्स जो मुझे पता हैं, अगर मैं z इक्वल्स टू 0 पर बात करूं, z इक्वल्स टू 1 पर बात करूं, x इक्वल्स टू 0 पर क्या बिहेव कर रहा है, आपको 2D वाले फिगर्स नज़र आने लगेंगे. और जैसे ही वो नज़र आएंगे, वैसे ही उनका विजुअलाइजेशन आप ज्योमेट्रिकली करना स्टार्ट कर देंगे. यस और नो? सो अब तो मैथमेटिकली भी हमें पता ही है. दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? कहाँ गया? आई एम सॉरी. मतलब इसमें कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो मैंने डिस्कशन में भी बताया ही था.
right? So what I suggest you guys, never lose patience, never think कि things are next to impossible. If you feel any of the concept in maths, I'm saying mathematics optional, ठीक है? If you feel कि I can help you, you can decode your concept with me well, then don't forget to put your suggestions. We will definitely come up with a concept talk over your masses itself, because we are determined. And मतलब मेरे को भी अब मज़ा आने लगा है स्टार्टिंग में व्हेन टीम सेज कि सर प्लीज़ डू इट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार बच्चे कोचिंग कर लेते हैं फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें रह रही है, ये चीज़ें, तो उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो आई सेड कि यार ओवर द ईयर्स मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं उनको ज़बरदस्ती मनरेगा मजदूरी में ना डाल के, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी रेगुलर बैचेस चल रहे होते हैं, सो उसको यूट्यूब पे करने का कोई सेंस नज़र नहीं आता। सो आई सेड कि लेट्स डू इट इन दिस वे where we are taking your feedbacks to come up with the next talk. So I hope you have enjoyed the lecture, right? So we will meet in the next lecture. Don't forget to appreciate each other. Good luck. Keep smiling.